Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I have come with a matrix multiplication. आज मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ. Let's see now. आपको सबको पता ही है, सबसे पहले the first rule of the matrix multiplication, that is फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ एन सेकेंड मैट्रिक्स. सो दिस इज द मेन रूल फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. And how we are doing a multiplication? Whenever we are going for the matrix multiplication, we are multiplying the first matrix row with a second matrix column. ओके आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो डायग्राम है आप यहाँ पे देख सकते हैं. हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है जहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा 3x3 के दो मैट्रिक्स है. इनका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है. आप थोड़ा कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए. यू कैन सी ये 1 1 1 ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट रो. एंड दीज आर नोन एज ए कॉलम. इसका फर्स्ट कॉलम है 1 2 and 3. द रूल से दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस रो. ये जो रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है, ये तीनों कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है. तो हाउ यू कैन सी, अभी यहाँ पे सेकंड डायग्राम देखिए आप कि ये जो फर्स्ट रो है ये पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगी. कैसे करेंगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3. 1 multiply by 1 plus 1 multiply by 2 plus 1 multiply by 3. In this way ये तीनों एलिमेंट्स जो है फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. और फिर जो भी मल्टीप्लाई के बाद इन तीनों का एडिशन होके ये हमारा फाइनल वन फर्स्ट बिट ऑफ दिस मैट्रिक्स हमको मिलेगा. इन द सेम वे अभी ये वाला जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, नाउ इट विल गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय विद द सेकेंड कॉलम. पहले फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट जो पूरा रो है वो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया. Then in this way again we will multiply with the first row को थर्ड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे in the same way. So our first row will be created in answer of the matrix, that is 6 6 and 6. ओके इन सबका जो कॉम्बिनेशन प्रोसेस है, जो मल्टीप्लाई प्लस और एडिशन का प्रोसेस मिलकर हमको नंबर 6 मिलता है. यहाँ पे भी 6 मिलेगा, यहाँ पे भी 6 मिलेगा. नाउ लेट्स सी विद द सेकेंड रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स. नाउ वी आर गोइंग टू take a second row of the matrix that with, and this second row of this matrix will be multiplied with all the column of the second matrix. And here it is 2 into 1, 2 into 2 plus 2 into 3. ऐसे करके मुझे एक बीट मिलता है पूरा, दैट इज 12. इन दिस वे ये जो सेकेंड रो है ये तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको यहाँ पे सेकेंड रो यहाँ पे मिलेगा, दैट इज 12 12 and 12. Now we will go for the third one, third row. In the third row also we will have to do the same process. The third row is going to multiply with all the three matrices, all the three columns of the second matrix. And in this way you can see here we will get the answer matrix, that is a multiplication of matrix 1 into 2. We will get this
matrix that is 6, 6, 6, 12, 12, 12 and 18, 18, 18. Now it's clear. Now we will go how we are going to code the program. How we are going to code it. Now see here, I will open the notepad. Already I have written a code. So in this video lecture, the video will be not too long and all the doubts will be clear. And I will going to explain each and every code. So I am dividing this my screen because I want to show how this one-to-one, how a one-to-one program is done, one-to-one matrix is going to implement while we will see this above diagram here, and also we are going to see this matrix, right? As now you can see, you are able to see this both the screen. So you can see here. I will arrange it properly. Yes. Now I think you are all visible. Now see here, you can see this the above screen. In this I have written the code. For that, the requirement for the double damage for the matrix multiplication, I required two matrices, that is known as double dimensional array. I have taken the first array is A, that is 3 into 3, 3 by 3 matrix I have declared, and second matrix also I have declared 3 by 3. And again third matrix I have declared to store the answer, store the multiplication answer here, right? Now one more variable I have taken, that is a sum equals to 0. That I will explain later on afterward. First we will see how we can scan the value. For the scanning the value from the user, I will have to take, मुझे क्या लेना है, स्कैनर लेना है, स्कैनर. ओके, आई विल डिफाइन वन स्कैनर, और डिफाइन करने के बाद मैं सिस्टम से यूजर से एक प्रिंट एलन एंटर द वैल्यू फॉर द यूजर, ये वाला एक ये इसके लिए मुझे भी नेस्टेड फॉर लगने वाला है. ये देखिए यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि मैंने 2 फॉर लूप लगाया, आप या कोड पे देख रहे हैं. दिस इज माई 2 फॉर लूप आई हैव रिटन. वन इज ए इनर फॉर एंड अनदर वन इज एन आउटर फॉर. अभी ये कंसेप्ट हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये देखिए, मैंने एक जो फॉर है, आप हमेशा बहुत से टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं कि हम लोग जब भी फॉर लूप यूज करते तो आई और जे यूज करते हैं, राइट? लेकिन मैंने यहाँ पे आर और सी इसलिए यूज किया कि आपको ये रो एंड कॉलम का कंसेप्ट समझ में आए, हम लोग प्रोग्राम में कैसे करने वाले हैं. ये जो आउटर फॉर है, ये मेरा जो आउटर फॉर है, ये आर जो लिया है मैंने, ये नंबर ऑफ रो एंट्रीज के लिया है. द नंबर ऑफ रो विच आई एम गोइंग टू एंटर इनटू माय मैट्रिक्स. और जो सी लिया है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, इनर फॉर है. और यहाँ पे देखिए ए ऑफ आर एंड सी, यहाँ पे मेरी वैल्यू स्टोर होंगी. जब मैं यूजर से स्कैन करती हूँ first row, I'm going to scan a first column and I'm going to scan here. पहले रो के मेरे सारे कॉलम के एलिमेंट्स आ जाएंगे, all the elements. So what are these? This is my first row. फर्स्ट रो के कितने कॉलम है? 1, 2 and 3. ये सारे एलिमेंट मेरे फर्स्ट एंट्री होंगे. That is a 1, 1 and 1. See here, 1, 1 and 1. फिर मेरा लूप फिर से इनर फॉर कंप्लीट हो गया. देन सेकेंड में जाएगा तो वो क्या करेगा? इट विल गो फॉर द सेकेंड रो. दैट इज माई आर वैल्यू बिकम अ 1 बिकॉज आई एम स्टार्टिंग माई लूप विथ 0. सो माई आर वैल्यू बिकम अ 1. सो यहाँ पे वो फिर एंट्री करेगा 2, 2 and 2. मतलब सेकेंड रो के सारे कॉलम एलिमेंट मैंने एंट्री कर दी है. देन आई एम गोइंग फॉर द थर्ड. ये मेरा कंप्लीट हो गया रूप. देन आई एम गोइंग फॉर द थर्ड रो. दैट इज माई आर बिकम 2 एंड दिस टाइम आई एम एंटरिंग 3, 3 and 3.
In this way, I am going to prepare a two matrix. One is for this R is for my row and C is for my column. ऐसे करके मैंने दो मैट्रिक्स एंटर कर लिया यूजर से. I have written a code for that. Now what is the process? Now main is the process of the matrix. This you can see the process. For the matrix multiplication, I require again one more for loop. जो देखिए ये क्यों यूज करती हूं मैं, आप देखिए ये मेरा ये रो है और ये मेरा कॉलम है, राइट. ये मेरा रो. अभी यहाँ पे देखिए ये रो के लिए हमने ये वाला, हम सोचते हमारा जो कंसेप्ट है क्या है, ये फर्स्ट रो लेंगे हम फर्स्ट मैट्रिक्स का. वी आर टेकिंग ए फर्स्ट रो ऑफ माय फर्स्ट मैट्रिक्स. दैट इज यू कैन सी हियर. ए का मैंने क्या लिया है, आर लिया है. आर मतलब मेरे आर में का सारे एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे. ओके. और बी का क्या लेने वाली हूं मैं, बी मैट्रिक्स का कॉलम. ये मेरी कॉलम है ये वाली. सो दिस इनर फॉर मैंने यहाँ पे क्या लिया, सी लिया है. नो अभी ये के काय के लिए यूज किया, के इसलिए यूज किया है कि मेरा जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो मेरा ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होने वाला है. यस, इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड. सो व्हाट इज द प्रोसेस हियर. जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा रो का दैट इज अ 1 एंड बी जो कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 है. उन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा एंड दिस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद वो क्या होगा, प्लस होगा. या अभी यहाँ पे देखो सम का क्या रोल है. मैंने वहां पे ऊपर पहले ही यू कैन सी यहाँ पे मैंने पहले ही सम को इनिशियलाइज किया 0. इसको मैंने पहले ही इनिशियलाइजेशन क्या किया है, 0 किया. सो जब मेरा फर्स्ट लूप यहाँ पे रन होने वाला है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस जो भी ये एलिमेंट है 1 into 1 आएगा. तो यहाँ पे सम इक्वल्स टू 1 हो गया. व्हाट आई गॉट द फर्स्ट 1. ओके, सम इक्वल्स टू 1. नाउ अगेन दिस लूप इज गोइंग टू अगेन, और फिर से ये लूप घूमने वाला है कितने बार, 3 टाइम्स, क्योंकि उसको 3 पूरे एलिमेंट्स लेने. देन इट विल गो फॉर द सेकेंड 1 देन अगेन इट विल गो फॉर द 1 into this elements. It is going to 1 into 1. Yes, 1 into 1, then 1 into 1 and 1 into 1. In this way I will get the sum. और sum मेरा क्या होगा, 1. जो sum है मेरा क्या आएगा, 6. क्यों, कैसे 6 आएगा, यहाँ पे 1 है प्लस 1 into 2 that is 2 and then 1 into 3 equals to 3. Then 1 plus 2 plus 3 equals to 6. अभी मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा इनर फॉर जो है मेरा के वाला, के आई एम टॉकिंग अबाउट के, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट सी एंड ऑल दिस. दिस हैज वर्क एंड आई गॉट हियर फर्स्ट एलिमेंट दैट इज a 6 and that 6 see here and that 6 will I am going to first I will replace it. मैं ये सम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 6 पहले मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी मल में एंड देन अगेन आई विल इनिशियलाइज माई सम इक्वल्स टू 0. अभी मैं फिलहाल मेरा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर रही हूँ. फर्स्ट आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई फर्स्ट कॉलम. तो ये मेरा 0 हो गया. यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया. एंड देन अगेन इट इज गोइंग टू गो हियर वेयर इनटू अ दिस फॉर that is in second inner for. Second, this is a inner for, this is a second inner for and this is a totally outer for. Now then here second here. Now here the column length become column size, column is converted into C, that is a 1. then here see यहाँ पे अभी ये second elements पे आएगा, that is the second C. okay, and now it will go this again, it will become, it will take all the column and it will multiply by this one, second row. yes, second column of my B का मैं सेकेंड कॉलम लूंगी और A का मेरा फर्स्ट ही रो शुरू है अभी, इसलिए ये R तो 1 है, R तो 1 ही बना हुआ है, राइट.
एंड सी, लेकिन कॉलम का चेंज हो गया, कॉलम ये होने वाला है, द कॉलम इज बिकम दिस वन and its multiplication, and then I will get this second bit, and this second bit I will again insert into this. In this way my first row will be completed and then I will go for this row. ऐसे करते करते ये पूरा ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा. Okay, and in this way I will complete all the process, and in this way I will get the multiplication. Now let's see, हम लोग एक बार रन करके भी देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है सही है कि नहीं. अभी ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी इसका आउटपुट मुझे डिस्प्ले भी करना है यूजर के यहाँ पे. सो हाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले इट, सी हियर माय कोड हियर, दिस इज अ R and this is a C, it is for a row and this is for the column. अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं R is C. यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस दिया है कि एवरी टाइम ईच एलिमेंट जो मैट्रिक्स का हो हर टाइम वो स्पेस देने के बाद उसका एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए. एक पूरा एक सारा पूरा एक फुल एक रो प्रिंट होने के बाद इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड इट विल गोइंग टू प्रिंट all the element of the column and the first row, and it will go for after the first row it should go to the next line. So I have written, जब मेरा inner for का statement जो है ये inner for मेरा complete होने के बाद मैंने अपना ये bracket close होने के बाद I have written this system dot out println. So ये next line में जाएगा, so I will get the proper output. Now let's see, हमने जो example लिया है यहाँ पे जो मैंने नोट पैड ये जो मैं एग्जाम्पल दिया है ये सेम एग्जाम्पल हम अभी रन करके देखेंगे. ओके, नाउ सी हियर, दिस इज माय नाउ आई विल ओपन न्यू विंडो, आई विल ओपन द न्यू कमांड विंडो आई हैव to open here. I will write here cd slash. Now cd, I will go to my folder where I have saved all my file, and my file I am going to run it. Java C से मैं अपना फाइल जो भी है कंपाइल करूंगी. मेरा फाइल का नाम है matrix mul dot java. Yes, it has been compiled successfully, so I am going to run it. So how I am going to run it, I have cleared this, even I have cleared this one in this way. Enter 1 3 into 3 matrix, that is first I will enter all the element, that is a 1. देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है मैंने वही सेम लेने वाली हूँ. You can see here इनपुट्स. जो आपको जो आंसर आ रहा है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं ये आपको समझ में आएगा. Yeah, this is a matrix 1 1 1. So I am going to first element, first row is my 1, so space 1, one, one. ये मेरा हो गया first row. Then my second is 2 2 and 2, and then third is 3 3 and 3. Yes, now I have to enter the second one in the same way. I am going to enter second one, 1 and 1. Now here I can write here 2 2 and 2, and then 3 3 and 3. You can see I have got the same answer. Yes, 6 6 6 12 12 12 and 18 18 18. यस, हमारा जो आंसर है यहाँ पे जो प्रोसेस बताई है सेम आंसर है. वी आर गेटिंग ए सेम आंसर. You can see this one, this is the same, and here also I got the same answer. Yes, I think everyone has cleared your doubt about the matrix multiplication. And don't forget to like and share my
channel and also subscribe it and also share with everyone who's having a difficulty in matrix multiplication. Again, one more concept I want to tell you about the matrix multiplication in the next lecture. Bye bye.